الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين 14 رمضان 1441 اور آج 14ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ سورہ الحجر یہ مکی صورت ہے، اس میں 99 آیات ہیں، اور جیسا کہ یہ سب کو معلوم ہے، پہلے بتایا گیا ہے کہ مکی صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے احکام نازل نہیں فرمائے بلکہ توحید کا ذکر کیا ہے اور شرک کی بے خونی کی ہے۔ پہلی قوموں کا، پہلے انبیاء کا ذکر، ان کو دعوت دینا، اور جتنے بھی رسول پہلے بھیجے گئے ہیں ان سب کا اپنی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کی دعوت، یہ مکی صورتوں کا موضوع رہا ہے۔ تو یہ سورہ الحجر بھی مکی ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی موضوع کو بیان فرمایا ہے، اور بہت اہم موضوع اس کے اندر ایک یہ بیان ہوا ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ پہلی جو کتابیں تھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے صحف نازل فرمائے تھے پہلی امتوں پہ، پہلے انبیاء پر، تو ان لوگوں نے ان کتابوں میں تورات، انجیل، زبور اور دوسرے جو صحائف تھے ان میں تغیر و تبدل کر لیا، تبدیلیاں پیدا کر لیں، تحریف کر لی، اور اس وقت کوئی بھی ایسی کتاب سوائے قرآن مجید کے آسمان سے نازل کردہ اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے۔ اس کا سبب کیا تھا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری انسانوں پر ڈالی گئی تھی، اس لیے انہوں نے اس کی حفاظت کی بجائے اس کے اندر جیسے جیسے وقت بیتتا گیا اور لوگ نسل در نسل آگے چلتے گئے، تو انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کر لیں، معنی تحریف بھی کرتے رہے اور الفاظ کی جو ہے وہ تحریف بھی ہوتی رہی۔ لیکن ایک ایسی کتاب اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی ہے اور وہ قرآن مجید ہے کہ اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے، اس کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن مجید میں نے نازل کیا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ کوئی اتنی بڑی کتاب بعین ہی حفظ کر کے جو ہے وہ کوئی نہیں دکھا سکتا، اور 1400 سال سے زیادہ بیت گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لوگ اس کو حفظ کر رہے ہیں، اور کوئی حافظ بھی زیر اور زبر کی غلطی اگر کرتا ہے تو فوراً دوسرا شخص، دوسرا حافظ قرآن
اس کو اس کی غلطی یاد دلاتا ہے، بھئی یہاں زبر نہیں زیر ہے، یہاں پر زیر نہیں پیش ہے، یہاں پر زیر نہیں زبر ہے۔ کوئی بھی ایسی غلطی کرتا ہے پڑھنے میں تو اسی وقت اس کی تصحیح کر دی جاتی ہے۔ لوگوں نے اس کی معنوی تحریف کرنے کی بہت کوشش کی ہے اور کرتے رہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہوا ہے۔ اس لیے آج یہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا یہ قرآن، آج بھی اسی حالت میں اسی صورت میں موجود ہے۔ لوگ آج بھی اس کے اندر معنوی تحریف کر رہے ہیں، یعنی معانی کو بدل دیتے ہیں، لیکن الفاظ کا بدلنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ اس قرآن مجید کے اندر چیلنج کیا ہے ساری دنیا کو، عرب کو، جو اپنے آپ کو بڑے فصیح اور بلیغ کہتے تھے، فصاحت اور بلاغت جو ہے وہ بڑی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک سورت جو ہے وہ لے آؤ، ایک سورت ہی نہیں ایک آیت ہی لے آؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ چیلنج آج تک کوئی بھی جو ہے وہ بندہ اس طرح کی کوئی آیت تک پیش نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید جو ہے وہ معجزہ ہے، یعنی عاجز کر دینے والی کلام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود جو ہے وہ اٹھایا ہے، تو اس لیے آج تک اس کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ تحریف کرنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا یا کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا نام نہاد ہو، وہ کہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ آیت ہے یا اس طرح کی آیت ہے یا یہ زبر اور زیر ہے، تو فوراً دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا ایک مسلمان حافظ قرآن اس کی تصحیح کرتا ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ قرآن مجید اس طرح ہے، یہ بات تم جو ہے وہ صحیح نہیں کر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے، تو آج تک یہ معجزہ ہے اور اس کو کوئی بھی جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خلقت اور پھر ابلیس کا سجدہ نہ کرنا اس کو بیان کیا ہے، اسی طرح اس صورت کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جنوں کو ہم نے کس سے پیدا کیا اور مٹی کو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّن طِينٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک سڑے ہوئے گارے کی جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اس سے پہلے ہم جو ہے وہ لو والی آگ سے جو ہے وہ جن کو پیدا کر چکے۔ جن جو ہیں وہ آگ سے پیدا ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اور پھر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ، میں کھنکھناتی ہوئی جو کھٹکھٹے والی جو ہے وہ ٹھیکری جس طرح ہوتی ہے، اس مٹی سے میں آدم کو بنانے لگا ہوں، بشر کو بنانے لگا ہوں۔ تو پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ جب دیکھو کہ وہ حرکت میں آ گیا ہے، حرکت کرنے لگ گیا ہے، تو اس کو سجدہ کر۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب نے مل کر سے اکٹھے ہو کے سجدہ کیا، الا ابلیس ابا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، بھائی سجدہ کرنے والوں میں تم شامل کیوں نہیں ہوئے؟ تو اس نے جواب دیا لم اکن لاسجد لبشر خلقته من نار من صلصال من حمأ مسنون، میں اس بشر کو سجدہ نہیں کر رہا جس کو تو نے مٹی سے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قال فاخرج منها فانک رجیم، نکل جاؤ یہاں سے، تم راندہ درگاہ ہو، تم پر پھٹکار پڑ چکی ہے۔ تو پھر اس نے
इबलीस ने उस वक़्त फिर, जैसा कि पहले भी आपको बताया गया था कि इबलीस ने, शैतान ने, लाइन ने उस वक़्त फिर अल्लाह क्या मोहलत तलब की थी? क़ाल रब्बि फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून। इबलीस कहने लगा, है अल्लाह, है मेरे परवरदिगार, मुझे क़यामत तक के लिए, यानी जब दोबारा इनको उठाया जाएगा लोगों को, उस वक़्त तक के लिए मोहलत दे दो। तो अल्लाह ताला ने कहा, क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, तुम्हें मैंने मोहलत दे दी है, लेकिन इला यौमिल वक़्तिल मालूम, लेकिन वो एक वक्त मालूम तक है, उस वक़्त तक है जब तक मुझे उसका इल्म है, किसी और को इल्म नहीं है। क़यामत के दिन तक तो मैं मोहलत नहीं दूंगा। तो उस वक़्त फिर उसने, शैतान ने ये बात कही थी, क़ाल रब्बि बिमा अग़वैतनी लअज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्ज़ि व लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादकल मुख़लसीन मिनहुमुल मुख़लसीन। तो सारे बंदों को गुमराह करूंगा, सवाए मुखलिस बंदे जो है वो तेरे वो बच जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने भी कहा, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन इल्ला मन इत्तबअका मिनल गावीन। जो गुमराह किस्म के लोग होंगे, तेरी पैरवी करने वाले, वो जो है वो तेरे झांसे में आ जाएंगे, लेकिन मेरे मुखलिस बंदे वो तेरी चालों से दूर रहेंगे, तेरी जो है वो मकर व फरेब से जो है वो दूर रहेंगे। व इन्ना जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन। जो तेरे पीछे चलेगा उन सब का जो है वो ठिकाना फिर हम उसको जहन्नम में फेंकेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फिर फरमाया, लहा सबअतु अबवाबिन लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम। उस जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे से जहन्नमियों का एक हिस्सा मुकर्रर है, वो वहां से गुजरेगा। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यहाँ पर बताया है, इस बात की खबर दी है, और हदीस में भी ये बात मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस नबविया में जन्नत के मुतालिक फरमाया है कि उसके 8 दरवाजे हैं। जहन्नम के जो है वो 7 हैं और जन्नत के 8 दरवाजे हैं, और हर दरवाजे से जो है वो कुछ लोगों को मुकर्रर किया गया है। बाबु रैयान जो है वो रोज़ेदारों के लिए है, बाबु सलात नमाजों के लिए है, इसी तरह नमाजियों के लिए और इसी तरह दूसरे लोगों के लिए भी दरवाजे जो है मुकर्रर किए गए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 8 दरवाज़ों से, जो जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनसे जो है वो आवाज़ दी जाएगी कि हम जो है इससे गुजरो, इससे गुजरो। तो वो 8 जन्नत के दरवाजे जो हैं उससे साबित होता है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यहाँ पर पहली उम्मतों का भी जिक्र किया है। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पहली कौमों का बयान करते हुए इस सूरत के अंदर कुछ अपनी निशानियाँ भी बयान की हैं कि मैंने जो है वो ये तुम्हें दिया है, ये तुम्हारे ऊपर इनाम किया है, ये तुम्हारे ऊपर इनाम किया है, इसकी वजह से जो है वो तुम्हें अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत करनी चाहिए। और अपनी जो पहले नबी भेजे थे, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, इस कुरान मजीद से जो पहले किताबें नाज़िल की थी और अंबिया और रसूल भेजे थे, उनका जिक्र जो है वो इजमाली तौर पर किया है। इसी तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बयान किया है। लूत अलैहिस्सलाम की तरफ जो है वो उनकी कौम की तरफ जो फरिश्ते आए थे अजाब लेकर, उनका भी जिक्र किया है अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस सूरत के अंदर भी, जैसा कि पिछली सूरत में, पिछले पारे में भी इस बात का बयान गुज़र चुका है। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में जब नबूवत आपको मिली, तो आप चुपके चुपके जो है वो छुप के दावत का काम करते रहे, हत्ता कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो है वो ये हुक्म दे दिया कि भाई अब एलानिया तौर पर दावत दीन का काम करो। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में फरमाया, फस्दा' बिमा तुमर, अब आपको जो हुक्म दिया गया है दीन की तबलीग का, आप उसको वाज़ेह कर दें, सबके सामने जो है बयान कर दें। व अ'रिज़ अनिल मुशरिकीन, और मुशरिकों से एराज करें, ये जो कुछ करते हैं, जो कहते हैं, इनकी बात ना सुने, आप जो है वो खड़े हो जाएं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर
खड़े होकर वा सबाहा का जो है वो वहाँ पर आवाज़ा बुलंद किया। सारे मक्का के लोग जो है वो, और फिर बाकायदा कबीले वालों को, हर कबीले का नाम लेकर पुकारा। तो हर जो है वो कबीले वाला सरदार ना आ सका तो उसने अपना एलसी भेज दिया। तो वहाँ पर सारे पहुँच गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई बात सुनो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे ये बताओ कि मैंने कभी जो है वो तुम्हारे साथ कोई ऐसी बात की है जो झूठ वाली हो। तो उन सब ने बैक ज़बान होकर ये बात कही थी, मा जर्रबना का इल्ला सिद्क़ा, हमने तो सिर्फ आपकी ज़बान से सच ही सुना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि मैं अगर ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर जल्लाद खड़ा है जो तुम्हारे ऊपर हमला आवर है, तो मान लोगे? तो कहने लगे हाँ मानेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इससे भी जो है वो बड़ी चीज़ से तुम्हें डराने के लिए आया हूँ, और जहन्नम के अजाब से बच जाओ। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, ये कलिमा पढ़ लोगे तो तुम बादशाह बन जाओगे, अजम के अंदर भी तुम्हारी चलेगी, अरब के अंदर भी तुम बादशाह बन जाओगे, तुम्हारी मिल्कियत हो जाएगी। तो उन लोगों ने आगे से मजाक करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर फरमाया, क्योंकि ये सूरह मक्की है, फरमाया इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, ये जो इस्तेहज़ा करने वाले हैं हम इन्हें जो है वो पकड़ लेंगे, हम काफ़ी हैं इनके लिए, हम इनका मस्खरापन जो है वो इनको सज़ा दे के रहेंगे, काफ़ी हो जाएंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको सज़ा दी। देख लीजिए जो अबू जहल, उतबा और शैबा और वलीद, ये जितने सारे बड़े बड़े थे, सारे के सारे हिजरत के बाद जब हक और बातिल का मारका हुआ, मारका बदर पहला जो मारका था, उसमें ये 70 बड़े बड़े जो थे वो सारे के सारे मारे गए। तो ये अल्लाह ताला ने इनको सज़ा दी थी। उसके बाद सूरह नहल है, और सूरह नहल भी ये मक्की सूरत है। इसके अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहली उम्मतों का बयान किया है और अपना तारुफ करवाया है। अल्लाह ताला ने जो नेमतें की हैं उसका जिक्र किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले नेमतों का जिक्र किया, वल अनआम खलक़हा लकुम फ़ीहा दिफ़्उन व मनाफ़िउ व मिन्हा तअकुलून, खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़, खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़ा। ये सारी चीज़ें बयान करने के बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा व ज़ीना, ये घोड़े और खच्चर और ये गधे जो हैं ये हमने जीनत के लिए और तुम्हारे जो है वो सवारी के लिए पैदा किए हैं। वयख़्लुक़ु मा ला तअलमून, और इसके अलावा भी सवारियों के लिए बड़ी चीज़ें हैं जो तुम्हें नहीं इल्म। तो उस वक़्त ये सवारियाँ नहीं थी, आज जो हमारे पास हैं, हवाई जहाज़ हैं, इसी तरह गाड़ियाँ हैं, और जो है वो ये सारी चीज़ें उस वक़्त नहीं। तो अल्लाह ताला को इल्म है। इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नेमतें गिनते और गिनाते हुए आगे फिर फरमाया, युम्बितु लकुम बिहि ज़रअ वज़्ज़ैतून वन्नख़ील वलअअनाब, जैतून, खजूरें और इसी तरह अंगूर, खेती, व मिन कुल्लि समरात, सारे फल जो है अल्लाह की नेमतें हैं। और फिर आगे फरमाया, वसख़्ख़र लकुमुल लैल वन्नहार, ये दिन का जाना और रात का आ जाना, फिर रात का चले जाना और दिन का आ जाना, ये जो है वह शम्स वल क़मर, ये सूरज और चांद जो है तुम्हारे लिए मुसख्खर किए हुए हैं, ये भी तुम्हारे काम में लगे हैं। वन नुजूम, ये और ये जो सितारे टमटमा रहे हैं आसमान पर, मुसख्खरातुम बिअम्रिही, ये भी मुसख्खर हैं उसके हुक्म के माता है। और उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, ये मैंने नेमतें जो है कुछ जिक्र की हैं, अल्लाह ताला बयान करते हैं ये नेमतें मैंने तुम्हारे लिए कुछ जिक्र की हैं, लेकिन अगर अल्लाह की नेमतों का जो है वो जिक्र जो है वो शुरू कर दो, शुमार कर दो, तो फिर तुम शुमार कर ही नहीं सकते। बंदा, अल्लाह ताला ने एक जगह पे फरमाया, वफ़ी अनफुसिकुम, और तुम्हारी अपनी जान के अंदर ही बहुत सारी निशानी है, बहुत सारी नेमतें हैं। ज़रा देखिए कि ये हाथ जो है इसकी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और ये उंगलियां और उंगलियों का ये जो है वो फोल्ड हो जाना, मुड़ जाना कितनी बड़ी नेमत है। ज़रा गौर कीजिए कि अगर ये हाथ बिल्कुल उंगलियां जो है वो ऐसे खुली की खुली हों और इसके अंदर फोल्डिंग सिस्टम ना हो, ये जो है वो ऐसे इकट्ठी ना हो जाएं, तो किस तरह किसी चीज़ को पकड़ने के काबिल होंगे हम। अगर किसी शख्स की एक उंगली जो है वो ऐसे रहे और बाकी जो है वो, तो वो उसकी हालत क्या होगी।
आंखों को बंद करके थोड़ी देर देख लीजिए कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमतें हैं। इसी तरीके से कान है, जबान है, पाँव हैं, जिस्म का अंग अंग है, कोई भी चीज जो है वो उसकी कदर उस वक्त होती है नेमत की जब छीन जाए। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सेहत बड़ी देखिए नेमत है। नेमतानी मक़बूलन फ़ीही कसीरुम मिनन नास, दो नेमतें ऐसी हैं जिसमें लोग जिसका ख्याल नहीं करते। क्या है वो? है एक अस्सिहा, एक सेहत है, वल फराग, दूसरी फरागत। तो ये दो बहुत बड़ी जो है वो नेमतें हैं अल्लाह ताला की। सेहत और बंदा जो है वो सही हो तो जो है वो उसको याद नहीं रहता मैंने अल्लाह की इबादत करनी है, मैंने अल्लाह की तरफ रुजू करना है। लेकिन जब वो बीमार हो जाए तो फिर बड़ा ज़हन में आता है, बड़े रब से वादे करता है, अल्लाह मुझे सेहत दे दे तो मैं ये करूँगा, सेहत दे दे तो मैं ये करूँगा, सेहत दे दे तो मैं ये करूँगा। इसी तरीके से फारिग नहीं होता कि वक़्त ही नहीं मिलता, कुरान मजीद पढ़ने का वक़्त नहीं मिलता, नमाज पढ़ने के लिए वक़्त, हाँ कभी वक़्त मिल जाए तो पढ़ लेता हूँ। लेकिन जब आजकल देख लीजिए अल्लाह ताला ये बीमारी जल्द ख़त्म करे मुसलमानों से, बल्कि पूरी दुनिया से। कोरोना वायरस जो इस वक्त है, पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो लॉकडाउन में फंसी हुई है, फारिग बिल्कुल। और ये फरागत जो है बहुत बड़ी नेमत है। आप फारिग हो के इसका क्या जो है फ़ायदा ले रहे हैं लोग? कई तो हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं पढ़ने लिखने का या कोई और काम करने का, और कई जो है वो क्या करते हैं सारा सारा दिन 12-12 घंटे 20-20 घंटे जो है वो मोबाइल के साथ चैट लगे रहेंगे और जो है वो गलत किस्म के प्रोग्राम देखते रहेंगे। इसी तरीके से फेसबुक पे जो है वो गलत किस्म की चीज़ें देखते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। तो ये जो फरागत है इसकी इस नेमत को भी जो है जब छीन जाए तो फिर पता चलेगा कि ये हमारे लिए नेमत कैसी थी। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस नेमत का फ़ायदा उठाएं। ये अल्लाह ताला की नेमत है फरागत। इसमें कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर लें, अगर हिफ्ज़ किया हुआ है उसको याद कर लें, अगर जो है वो जो पढ़ा हुआ था कोई उसको किताबें लेके बैठ जाए। अल्लाह ताला सही तौर पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसी तरह अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर मुशरिकीन मक्का के बारे में जो है वो इस बात का जिक्र किया है कि मुशरिकीन मक्का लड़कियों को नापसंद करते थे। अगर किसी के यहाँ लड़की पैदा हो जाती तो ये एक जाहिलियत का जो है वो बहुत बड़ी जो है वो खराबी थी जाहिलियत की, कि लड़की को जो है वो नापसंद किया जाता था, बल्कि उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। वो उसको जिंदा जो है जमीन के अंदर गड़ा खोद कर, उसके अंदर कब्र खोद कर, उसके अंदर मट्टी डाल के उसको दफन कर देते थे जिंदा ही। ये बहुत बड़ा जुर्म था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो इस लड़कियों के बारे में उनका जो मौक़िफ़ था या उनका जो जहन था वो जो है वो जिक्र करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब किसी को बताया जाता, खुशखबरी दी जाती कि तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है, तो उसका चेहरा स्याह हो जाता और वो दिल ही दिल में घुटना शुरू कर देता, घुटन महसूस करता कि क्या मेरे घर बेटी पैदा हुई है। अल्लाह माफ करे, आज भी अगर हम देखें अपने बड़े सगीर के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये जो इलाका है, हमारे यहाँ अगर बहू के घर जो है वो बेटे के घर पहली बेटी पैदा हो जाए तो मुंह बना बसोरना शुरू कर देते हैं, दूसरी बेटी आ जाए तो और जो है वो बातें, तीसरी बेटी पैदा हो जाए तो फिर बातें। सास जो है वो कहती है तेरे पास तो है ही बेटियों के अलावा कुछ रहा ही नहीं। ओ भाई अल्लाह के बंदे, ये बेटियां देना बेटे देना ये तो रब का काम है, और किसी को जो है वो ना दे, किसी को दोनों इकट्ठे दे दे अल्लाह ताला का। ये अरब के अंदर देख लीजिए उस वक़्त मक्का वाले या मक्का के गिरदो पेश जो मुशरिकीन मक्का थे, जाहिलियत में बेटी को नापसंद किया जाता कि बेटी पैदा हो वो चेहरे छुपाता फिरता था लोगों से। अल्लाह ताला ने फरमाया यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, वो उसको बुरा समझते थे कि बेटी पैदा हो गई है तो मुंह छुपाते फिरते, कौम के सामने नहीं आते थे और क्या करते थे वो अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, क्या उसको जलील होकर जो है वो पाल पोस ले या कि उसको जमीन के अंदर गाड़ दे, जिंदा दफन कर दे। अला साअ मा यहकुमून, अल्लाह ने फरमाया बहुत बुरे फैसले कर रहे हैं। तो आज भी देख लीजिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दीन इस्लाम की नेमत उनको दी, मुसलमान हो गए, और आज अरब के अंदर
بیٹا پیدا ہونے پر اتنی خوشی نہیں کی جاتی جتنا بیٹی پیدا ہونے پر خوشی کی جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ہمارے علاقے میں پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا اور یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے میں آج بھی وہ جاہلیت والی جو ہے وہ باتیں پائی جاتی ہیں. بیٹی کے پیدا ہونے پر کوئی خوشی نہیں، بیٹا پیدا ہو تو لڈو، رس گلے اور گلاب جامن جو ہے وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں، دعوتیں کی اڑائی جا رہی ہیں، دعوتیں کی جا رہی ہیں. لیکن بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کے لیے کچھ، یہ جو ایک جاہلیت کی جو ہے وہ رسم تھی، اور جاہلیت کا ایک بہت بڑی خرابی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.